And that was the story of our frontline guardians. And as we move on to our special segment on introducing the unsung heroes, our next guest is someone who is very special and dear to us. There are some who let the situation in their lives dictate their life's trajectory, but there are also some who take a hammer to their shortcomings, shattering the glass ceilings to soar even higher over the obstacles blocking their paths. Here is the story of Praveen Kumar, one such extraordinary person, an Indian who jumps over every obstacle, quite literally. Let's take a look at his journey first. Praveen Kumar is an Indian para-athlete high jumper born with a shorter leg due to congenital impairment. He competes in the T64 category, that is for athletes with moderate movement impairment in one lower leg or missing part of a leg. Despite the impairment, he jumped high over his limitations to make history as the youngest Indian para-athlete to win a Paralympic medal. He started back in 2019, pre-COVID pandemic, when his coach gave him a chance to perform, and perform he did. Because to him, para-sports is the best opportunity for special bodies. In his own words, he feels motivated and gets a boost of self-confidence seeing the crowd. At the Junior World Championship at Switzerland, his jump measured at 174 centimeters at his next competition in Dubai, a massive jump to 205 centimeters. But this determined athlete, true to the Indian spirit, strove with zeal to excel. His hunger for growth goes beyond the title as the youngest para-athlete to win a medal. So at the 2020 Tokyo Paralympics, with a bar jump of 207 centimeters, he won the silver. He was not content with silver. His thirst for gold was yet to be quenched. Then in the 2024 Paris Paralympics, he went on to get that gold medal, a feat that made the tricolour proud, as it was India's 6th gold medal at 2024. The clean jump that secured this gold was the fruit of all his cumulative hard work and endeavour. It was facilitated by his fiery drive, self-motivation for the win, the desire to not be defined by his circumstances. His determination and commitment to his game was recognized when in 2025 he was honoured with the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, the highest sporting award. That hunger for excellence to soar high for the win makes him a true inspiration to India. It makes us proud to be Indian. And in fact, Praveen Kumar is joining us here. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इस वर्ष आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और आपने एक बार फिर से हमको गौरवान्वित किया है पैरालंपिक्स में, जिस तरह से आपने मेडल जीता। और बचपन की अभी जब को कहानी बता रहे थे आपका जो सफ़र रहा है, जिस तरह से एक टांग जो थी उसका जो एक हाइट कम थी, उसकी जो लेंथ कम थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ सामना किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने सोचा कि नहीं, मैं जो अपना हौसला है वो कभी भी नीचे नहीं होने दूंगा। आपने हौसले बुलंद रखे, आप एथलीट बने और आपने पैरालंपिक्स में गोल्ड जिताया। और ये मैं बता दूं दर्शकों को कि 3 महीने पहले आपकी कुछ इंजरी भी हुई थी पैरालंपिक्स से, तो किसी के भी जो हौसले होते हैं ना वो डगमगा जा सकते हैं, लेकिन आपके नहीं डगमगाए। ये कैसे आपका ये जो मानसिक आपकी जो शक्ति है वो किस तरह से आप इसको लाते हैं? मेरी इंजरी तो मुझे कई बार हो चुकी है और मेरी ये 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और पिछली 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं एक में 4th था और 2 में मेरा 3rd था। बट इट्स ओके, पर मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी 2027, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा अपने आप को फिट रखूँ ताकि मैं अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकूँ। बिल्कुल प्रवीण, आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और हम भी बहुत
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे समक्ष हैं और आपके साथ हम स्क्रीन को साझा कर रहे हैं। एक संदेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, आप रिपब्लिक टीवी पर बैठे हुए हैं। उन युवाओं को जो छोटी छोटी बात पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ज़रा सी हार, ज़रा सी कोई चोट, और आप एक मिसाल के तौर पर सभी के सामने खड़े हैं। आपने जीवन की चुनौतियों को बिल्कुल सामने से झेला है और एक चट्टान बन के उनके सामने आपने लड़ाई लड़ी है। कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अब मैं हार रहा हूं, मैं टूट रहा हूं? उस दौर में जब आप सबसे निचलेतम स्तर पे आ जाते हैं, उस दौर पर आप क्या करते हैं? ये सभी बच्चों को, सभी एथलीट्स को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपना वो नुस्खा कहते हैं ना, जिसको सीक्रेट, वो आप साझा करिए ना प्लीज। मेरा एक मोमेंट है 2019 का, जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड खेलने गया था। तो वहाँ पे मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी। 42 कैटेगरी मैं खेलने के लिए गया था, उसमें 44 क्लास मेरे को मिली थी, जो कि हार्डेस्ट कैटेगरी है हाई जंप की इन पैरालंपिक्स। तो तब मेरे माइंड में आया कि यार ये 44 का मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है और उसका मेडल स्टार्ट ही 2 मीटर प्लस से होता है। और मैं उस टाइम पे जंप कर रहा था 187, 190। तो माइंड तो पूरा टूट चुका था कि नहीं हो पाएगा। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना पड़ेगा, वो कैसे लेके जाऊंगा। तो फिर मैंने वापस मैं घर पे आ गया था, तो मैंने छोड़ दिया था स्पोर्ट्स 5-6 महीने के लिए। बट मेरे कोच साहब और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, ज़बरदस्ती मेरे को लेके आए दोबारा कि नहीं तू कोशिश कर एक बार। मेरे कोच साहब ने, मेरे कोच साहब का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी है, जिन्होंने अभी पिछली साल पद्मश्री से वो भी अभी हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 साल तू मेहनत कर, अगर तेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं तुझे वापस नहीं बोलूँगा, तू दोबारा स्पोर्ट्स कर। उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा और धीरे-धीरे जब मैं वापस आया 2019 में, तो मैंने 1 ईयर बहुत हार्ड प्रैक्टिस की। उसके बाद 2020 में जो ओलंपिक्स था टोक्यो का, जब मेरा वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स दुबई में वो क्वालीफाई हो गया, तब मुझे थोड़ा लगा कि अब कुछ हो सकता है। देन उसके साथ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही चला गया। बिल्कुल। बट ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये तो जर्नी का पार्ट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और अपने ड्रीम्स की तरफ और भी दुगनी स्ट्रेंथ से, पावर से उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जी प्रवीण जी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे मैंने, एंड उन इंटरव्यूज़ में जब आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, आपको एक पैरा एथलीट बुलाया जाता है, बट बहुत सारे इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि मैं सिर्फ एक पैरा एथलीट नहीं हूँ। सपने बहुत लोग देखते हैं प्रवीण जी, बट उनको पूरा करने का दम बस कुछ ही लोगों में होता है, और आप उनमें से एक हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं, आपके स्ट्रगल्स के बारे में बात होगी, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात होगी, व्हाई नॉट आपके फ्यूचर के बारे में बात करें। आप वेयर डू यू लुक योरसेल्फ, एंड अब आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप, और किस तरीके से आप अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं इसमें? अभी एशियन गेम्स है इस साल 2026 में, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर जापान। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना दूसरा गोल्ड मेडल अपने भारत देश के लिए लेके आऊं, और नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें मेरा गोल्ड नहीं है। अब ये 5th या 6th होगी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को फिट रखूं, और उसमें भी अपने भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं। और तैयारी तो मेरी लॉस एंजलिस की है 2028 की। तो मैं दोबारा से वो राष्ट्रगान जो अ, सभी कंट्री जो एक जगह बैठे हुए होते हैं लोग, सभी उनके सामने जब अपने देश का राष्ट्रगान सुनाया जाता है, तो वो मोमेंट मेरे को दोबारा से जीना है। तो मैं उसी के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी तो यही फ्यूचर प्लान्स है मेरे। जी बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। और आपने जो बातें कही हैं, वो जो युवा हैं वो खास तौर पर उसको गांठ बांध के रखेंगे, और इससे सीखने को बहुत कुछ, युवा के हम सभी को इससे सीखने को मिलता है कि जीवन के किसी कठिन मोड़ पर अगर आप टूटने का वक्त आए तो हाउ कैन यू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड इट्स ऑलवेज